वर्कलोड और स्ट्रेस ये दो अलग अलग चीज. वर्कलोड इज नॉट स्ट्रेस. वर्कलोड कैन बिकम स्ट्रेसफुल इफ यू टेक इट दैट वे. कुछ लोग के पास कोई काम नहीं है वो इसलिए स्ट्रेस, कुछ लोग के पास थोड़ा काम है वो इसलिए स्ट्रेस. सो स्ट्रेस इज नॉट अबाउट द वर्कलोड. Why should people meditate? मेडिटेशन, इफ वी ट्रांसलेट दैट वर्ड इन हिंदी, इट इज कॉल्ड ध्यान. जो काम करते हैं उसको अच्छे से करने के लिए ध्यान करना चाहिए. Correct. सिंपल स्टेटमेंट तो ये. Clarity पे मिलेगी वो meditation से. यस, इट गिव्स यू द बर्ड्स आई व्यू. एक मेज बनी हुई है नीचे, उस मेज में आप खड़े हो, आप उसमें से बाहर कहाँ से निकल सकते हो, क्या रास्ता छोटा है क्या लंबा है, ये रास्ता तो डेड एंड पे ले जाएगा, वहाँ पे क्या ब्लॉक्स है उस रास्ते तक पहुँचने के. ये मेडिटेशन है. तो वेदर यू सिट फॉर 3 minutes और यू सिट फॉर 30 minutes और यू सिट फॉर 3 hours और you sit for 3 days. It's all about practice. Is there a good time to meditate? Yes. Hi, I'm glad you're here for another episode of the Bright Life podcast, and I'm Krutika. Well, this episode is a deep dive on meditation, and I'm so glad you're here. If you're feeling stuck, or you're just slightly demotivated, or you want to level up, either in the area of your relationships, or in the area of your health, or in the area of your career, finance, and if you're a student, even your studies, then this episode is for you. You know, for a very long time, I'd read enough books, enough articles, enough blogs, videos, and people had just told me that, oh, meditation is so good, and I knew it. I knew it at an information level. It was when someone really sat me down, I learned meditation, and I finally knew at a very core level that meditation as a practice can be really game-changing. And it's such a simple tool to actually include in, my daily life as a working professional as well. So I thought that, I should invite some guest who's a bit of a heavy hitter in this space. And when we're talking about meditation, why do we need to look any further than our own country? So today we have Dr. Deepak Sachdeva. He's a very acclaimed, president awarded medical yoga specialist. He's taught tens and thousands of people around the whole country. Sat down with him to talk about meditation, what are some benefits, how can we get started, what are the right times, and so much more. So if you're a beginner, if you're curious, if you're skeptical, if you're any of these above spaces about meditation, then this episode is for you. I asked him some of the most commonly asked questions that I've either been asked from our users at Bright Life or more listeners of this podcast, even the questions that I had before I actually started on meditation. So each question and each answer is very, very valuable and insightful in this episode, not just for you, but maybe even people in your life. So make sure that you like, you share this conversation with other people, and make sure that you subscribe to our channel because we keep creating more such videos which keep you empowered and educated about your life. So let's go and let's get started. So today I thought I would take the opportunity of speaking to you and learning more about benefits of meditation, especially now in this age where I think there are stressors everywhere. मैं अभी रास्ते में भी आ रही थी तो भी मतलब मेरे पर्सनल सिस्टम पे इतने सारे डिमांड्स थे एंड मेरे को 2 मिनट बोलना पड़ा कि आप ना मेरे को just leave me for half an hour. I center my thoughts because otherwise I won't be able to do the conversation. तो मेरे को लगता है पर्सनली इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है तो मैं आपसे आज इस बारे में सीखना चाहूँगा. आप कुछ शुरू करो, मैं उससे पहले आपको कुछ बताता हूँ. जो आपने बोला उसी बात को आगे लेके चलो. परफेक्ट. वर्कलोड और स्ट्रेस ये दो अलग अलग चीजें. आपको बहुत सारे कॉल आ रहे थे, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारे मीडियम से आती रहेगी. वर्कलोड तो आप एंजॉय करोगे. वर्कलोड इज नॉट स्ट्रेस. ट्रू. Workload can become stressful if you take it that way. Right. कुछ लोग के पास कोई काम नहीं है वो इसलिए स्ट्रेस में. कुछ लोग के पास थोड़ा काम है वो इसलिए स्ट्रेस में. So stress is not about the workload. Workload is different. Stress is different. आप काम दो ना, कितना काम दे सकते हो, मजा आता है काम करके. So ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास ना बहुत सारा काम है करने के लिए तो इसलिए मैं टेंशन लूँ. नहीं, टेंशन में आप काम की वजह से नहीं हो. टेंशन तो एक एटीट्यूड हो सकता है, आपका माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जो उस काम को स्ट्रेसफुल बना रहे हैं. वो काम सबके लिए स्ट्रेसफुल नहीं है, सब कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे उसको. करेक्ट. सो वर्कलोड इज डिफरेंट, स्ट्रेस इज डिफरेंट. व्हाट यू वर गेटिंग व्हेन यू वर कमिंग हियर, इट वाज वर्कलोड.
हाँ. If you perceive it as stress, then it is stress, ठीक है. फिर हम उसको वैसा ट्रीट करेंगे और फिर हम प्रिस्क्राइब योर मोडालिटी कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए, फिर वो प्रोटोकॉल आ जाएगा. Whereas if you take it lightly, sir, I have so much work to do. I enjoy my work. Right. I cut off my mobile phone connection at 8 o'clock. मैं उस टाइम नहीं देखती, सुबह 9 बजे दोबारा ऑन करके दिखाओ पास स्ट्रेस लाइफ नहीं रह जाएगा. वर्कलोड बढ़ना इज ओके, स्ट्रेस Not so much. जी. One thing which we keep talking about today's day and ages, that people are working more than they were used to. We have more demands. पहले तो ऑफिस बंद हो जाता था. Now, right now, we are always accessible on phone. So why should people meditate? Why should people meditate? Meditation, if we translate that word in Hindi, it is called dhyan. Where do you use the word dhyan in your daily routine? कहाँ यूज करते हैं सोचिए. ड्राइवर को बोलते हो ध्यान से गाड़ी चलाओ. You tell your kids, ध्यान लगाओ, मैथ्स का पेपर है, ध्यान लगा के पढ़ो. आप ध्यान के लिए और कहाँ बोलते हो लोगों को? सुनने के लिए. सो ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है. करेक्ट. ध्यान कहाँ था? आज रोटी में सब्जी में नमक ज्यादा डल गया, ध्यान नहीं था. ध्यान is not something that you sit and you do. It is happening every time and every moment and everything that you do. ये बात हम बहुत बार बोलते हैं ना कि योग तो जीवन जीने की कला है, सारे दिन में ही होता है. होता कैसे है? हम लोग जरा उस पर बात कर लेते हैं. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है इस बात का? आपको आपकी मदर ने सिखाया कि खाने में सब्जी में इतना नमक डालते हैं. माँ आंखें बंद करके चुटकी में से जो भर के डाल देगी वो ठीक ही डलेगा. बट व्हेन शी इज एक्सप्लेनिंग इट टू शी विल टेल यू 5 grams 10 grams, आधा चम्मच, चौथाई चम्मच, फिर भी नहीं बनती वैसी सब्जी जैसी माँ बना देती. ऐसा क्या है फर्क? बच्चा मैथ्स में अच्छे नंबर ला पा रहा है, दूसरा बच्चा उसी टीचर से पढ़ के नहीं ला पा रहा है. फर्क क्या है दोनों में? माँ बना पा रही है, आप नहीं बना पा रहे. एक बच्चा ला पा रहा है, दूसरा नहीं ला पा रहा. व्हाट इज द डिफरेंस? ध्यान. आप उस काम को इतना रिफाइन कर चुके होते हो कर करके कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू. सो बिकॉज आपकी मदर ने पहले दिन जब सीखा होगा ना, उन्होंने भी गलतियां करी होंगी, पर थोड़े दिनों बाद आप भी वैसे ही बनाओगे और बिना सोचे समझे बस चुटकी से हाथ से डाल दोगे, बिना नापे हुए कितना नमक गया, और आपको पता है कि वो ठीक गया. कैसे हुआ होगा? आफ्टर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो कर करके वो चीज आपके रिफ्लेक्सेस में चली जाती है. अब आप मुझे बताओ, रिलैक्स रहना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो रोम में चले जाएगा. आपको करना थोड़ी पड़ेगा खुद को रिलैक्स. सो इसलिए वो जीवन जीने की कला बन जाती है. इट इज पार्ट ऑफ यू. करेक्ट. आपको पॉलिटिक्स में टॉप पे ले जा सकता है ध्यान, आपको डिजाइनिंग में टॉप पे ले जा सकता है ध्यान, आपको गाड़ी चलाने में टॉप पे ले जा सकता है ध्यान, आपको एक बहुत बेहतरीन मैकेनिक बना सकता है. आप कभी बेकार मैकेनिक ढूंढते हो क्या गाड़ी की रिपेयर के लिए? क्यों नहीं ढूंढते हो? हाँ, गाड़ी का मसला है. ऐसी डॉक्टर भी आप अच्छा ढूंढोगे. क्यों? गाड़ी के मैकेनिक से समझते हैं इस मैटर को, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना. ध्यान क्या है? वो ध्यान लगाता है गाड़ी के इंजन की आवाज पे और वहां से बताता है कि आवाज कार्बोरेटर की है, गाड़ी में से आने वाली आवाज ये उसके एग्जॉस्ट पाइप की है, या ये आवाज बोनेट से आ रही है, या ये आवाज इंजन से आ रही है. उस्ताद जी वो बस he'll just listen to the sound of the car and tell you कि ऐसा है. अब मुझे बताओ, ये योग ही तो हुआ. उसका ध्यान आवाज के साथ है, जो वो काम करता है उसके साथ. ध्यान और उसी चीज की प्रैक्टिस करते मैं एक्सपर्ट, इसमें कोई शक ऐसे ही तो होगा. और यही तो बात है. तो अब आप ध्यान को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के अगर देखोगे तो उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है. सो कोई बिजनेस में टॉप पे है ध्यान की वजह से, कोई मैकेनिक बढ़िया है जिसका भीड़ लगी होगी उस मैकेनिक के पास में, कि वो मैकेनिक बढ़िया है तो उसके पास ही जाना, भीड़ लगी होगी उसके पास.
कोई पॉलिटिकल एलिट होगा तो उसका लाइन लगा के लोग खड़े होंगे, सर हमारी पार्टी के लिए आ जाओ प्लीज कर दो। इट इज जस्ट लाइक दैट। सो ध्यान तो वही है, दैट इज ध्यान। तो किसको चाहिए? कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एवरीबॉडी। क्यों करना चाहिए? जो काम करते हैं उसको अच्छे से करने के लिए ध्यान करना चाहिए। करेक्ट। सिंपल स्टेटमेंट तो ये। जो भी करते हो, आप एडिटिंग करते हो एडिटिंग अच्छी कर पाओगे, आप वीडियो शूट करते हो वीडियो शूट अच्छा कर पाओगे, आप यूट्यूबर हो आप यूट्यूब को बहुत अच्छे से समझ के उसके अंदर एल्गोरिथम्स को समझ के लोगों की साइकी समझ पाओगे, क्योंकि आप ध्यान लगाते हो उस सब्जेक्ट पे जो सब्जेक्ट आपकी चॉइस का है, उसी को योग कहते हैं। योग का मतलब है यूनियन, यूनियन, यूनाइट होना विद the subject of your choice. You choose the subject of your choice. Become one with it. That is you. May I question ask you? So how is yoga different from meditation? It's not. It's not. So योग के जो हम 8 petals मानते हैं, ये सीढ़ियां नहीं, ये petals, एक साथ खिला हुआ कमल है जिसकी 8 पंखुड़ियां, सारी एक साथ ही हो रही होती हैं। पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें ध्यान एक हिस्सा है। उस ध्यान को करने के लिए आप एक आसन में बैठोगे ही, किसी तरीके से सांस चलेगी ही, सारी 8 चीजें साथ साथ ही हो रही होती हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो योग का ही हिस्सा है ध्यान, अलग नहीं है। शायद आप ये पूछना चाह रहे थे कि आसन और मेडिटेशन में क्या फर्क है? यस, ठीक। सो योग के ही 8 हिस्सों में से आसन भी आता है और ध्यान भी आता है। सो 8 है और 8 एक साथ ही होते हैं, एक के बाद एक नहीं होता, एक से पहले एक नहीं होता, दूसरे हाँ डोमिनेटिंगली एक दिखाई देता है। गॉट इट। तो जैसे अगर तो मैं मेडिटेट करती हूँ लेकिन मैं आसन अभी रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं करती हूँ, अभी कभी करती हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन, आने इससे कई लोगों को हेल्प मिलने वाली है। यस, तो मैं मतलब गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ और मैं जो मतलब आई एम डन अ कोर्स, तो उसमें जो मेरे को मेडिटेशन मिला हुआ है मैं वो करती हूँ। बट पीपल ऑल्सो मेडिटेट व्हाइल डूइंग आसन as I'm saying. So I think my question is, how are these two different, and doing purely meditation also good to go? ध्यान ऑफिस की कुर्सी में बैठ के होता है, ध्यान स्कूल की टेबल पे बैठ के होता है जहाँ पढ़ाई कर रहे हो स्कूल डेस्क पे, ध्यान गाड़ी चलाते हुए कार की सीट पे बैठ के होता है। अलग अलग नहीं है, वही आपको बताना चाहूँ। आप जिस चीज के साथ ध्यान करना चाहते हो आप उस चीज को चुन लो, उसके साथ एक हो जाओ, दैट इज ध्यान। उसकी टेक्निक्स है अलग अलग, ध्यान करना सिखाने की टेक्निक्स हो सकती है, करेक्ट, हम उसके बात करेंगे। सो आसन में जब भी आप हैं, लेट से कि मैं इस समय एक आसन में बैठा हूं, ये एक आसन है, हम इसे कुर्सी आसन कह देते हैं फिलहाल के लिए, इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। किसी तरीके की ब्रेथ चल रही है ना, राइट। प्राणायाम उसी के अवेयरनेस का बड़ा रूप है, करेक्ट। उसको डायरेक्शन देने का भी एक रूप है। करेक्ट। आप चाहे प्राणायाम के लिए बैठ जाओ, चाहे आप ध्यान करने के लिए बैठ जाओ, जिसको हम कॉमनली ध्यान मानते हैं, उसके लिए बैठ जाओ, या आप आसन करने के लिए बैठ जाओ, ब्रीदिंग हर वक्त चल रही है। आप किसी ना किसी आसन में ही तो बैठ के ध्यान करोगे, तो क्या आप आसन को और ध्यान को अलग कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। अब रही बात ध्यान के लिए पर्टिकुलर आसन की, जो कंफर्टेबल है, जिस आसन में स्थिरता से सुखपूर्वक लंबे समय के लिए बैठ पाओ। करेक्ट। लंबा समय भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, किसी का 5 मिनट है, किसी का 50 मिनट है, किसी का 5 घंटा भी है, वो अपना तय कर ले। लेट से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम है, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी बैठे कर लो, करेक्ट, क्या फर्क पड़ता है उसमें? यस। हम तो एक टेक्निक फॉलो कर रहे हैं जो अल्टीमेटली हमें वो फायदा करने वाली है। जो भी हम अपना काम करेंगे उसमें, आप टीचर हो तो टीचिंग अच्छी कर पाओगे, आप लॉयर हो तो तर्क अच्छे दे पाओगे, उस व्यक्ति की मानसिकता समझ के उसके अंदर घुस के खट वो बात बोलोगे जो बाकी लोग को हैरान कर देगी। आप पकड़ जाओगे पीछे के पीछे वाली बात को, अपने आप होगा। सिद्धि घटित होती है, करनी नहीं पड़ती, घटित होती है। सो जो भी करेंगे उसमें आसन और मेडिटेशन
होता ही है। आप ध्यान के लिए बैठ गए तो एक आसन में बैठे हैं, आसन कर रहे हैं, आसन करते हुए आंखें बंद करके आसन कर रहे हैं। तो अब आपने ये आपने ये तो बताया कि आई थिंक एवरीवन इज नाउ कन्विंस्ड दैट दे शुड मेडिटेट। नाउ आई वुड लाइक, दे आर ऑलरेडी डूइंग मेडिटेशन। जो किचन में गृहिणी काम कर रही है वो खाना बनाने में ध्यानस्थ ही तो है, ध्यान कर रही है तभी अच्छा बना पा रही है, नहीं अच्छा बना ही नहीं पा रही। राइट। सो ये फोमो बोलते हैं ना, फोमो से बाहर आ रही है हाँ। कि हम तो मेडिटेशन करते ही नहीं। आप वो छोटे समय के लिए करते हैं तो ये अच्छा खाना बना पाते हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे थे, दरवाजे पे घंटी बजी और नहीं सुनी, तो आप ध्यान की अवस्था में थे। आप छोटे छोटे ध्यान अपने हिसाब से हर रोज कर रहे होते हैं, पर क्योंकि आप लाइफ के कुछ पहलुओं को इम्प्रूव करना चाहते हैं जहां पे आपको लगता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, सो मेडिटेशन करके अच्छा हो जाएगा, उस तरफ आप चाह रहे हैं कि अब आपको कुछ टेक्निक्स पता लगे, करेक्ट, के अंदर उतर सके। यस यस। तो वन ऑफ द रिजल्ट्स दैट पीपल कैन एक्सपेक्ट व्हेन दे स्टार्ट मेडिटेटिंग। मुझे ये चिराग दो, एक जो चिराग रखा ना लाल रंग का, ये चिराग, ये एक जादू का चिराग है। इसको रगड़ के जो निकालोगे वो निकल आएगा। ये मेडिटेशन। यू विश फॉर इट एंड इट विल बी ग्रांटेड। अब बताओ चाहिए क्या? जो चीज चाहिए उस पे ध्यान लगाओगे तो वो वाली चीज फाइन हो जाएगी, रिफाइन हो जाएगी। आप उसके अंदर और अच्छी उतर पाओगे तो आप उसको अच्छा कर पाओगे। जब आप अच्छा कर पाओगे तो अपनी चॉइस की चीज की तरफ चलना शुरू हो गए ना, तो उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। जितना ज्यादा ध्यान लगाते जाओगे उतना उस इफेक्ट को पाते जाओगे। तो चिराग है जादू का, जो मर्जी मांग। वर्ल्ड का पूरा मेन्यू कार्ड खुला हुआ, कुछ मर्जी मांग लो उसमें। आपको अगर अपने प्राइवेट जेट चाहिए तो प्राइवेट जेट मांग लो उससे, एंड इट विल बी ग्रांटेड। इट इज दैट सिंपल। क्योंकि आपको जेट चाहिए होगा तो आप उसी के जैसे एक्शंस करोगे। करेक्ट। आप उसी तरह के लोगों से मिलना चाहोगे। आप जब कोई कंपनी नया जेट लॉन्च कर रही है तो आप उसके ऑप्शंस में जाओगे, आप बात करोगे। आपको आधे से ज्यादा लोगों को तो प्राइसिंग ही नहीं पता जेट आता कितना। चाहते होंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना, चाहते होंगे अरबोपति बनना, पूछना जेट का कॉस्ट पता है कितना है? रोल्स रॉयस जो वो कितने की आती है, उसकी मेंटेनेंस क्या है? क्योंकि उतरे नहीं उस गहराई, वो विशफुल थिंकिंग है। अगर सच में चाहिए ना, so you know exactly everything about that, उस पे एक्शन हुआ ही होगा। करेक्ट। उस पे कुछ ना कुछ जानते ही होंगे, उसकी खुदाई करी ही गई होगी। करेक्ट। जानते ही। सो चाहिए क्या? लोगों को यही नहीं पता। वो इसलिए बड़ी गाड़ी चाहते हैं क्योंकि सब लोग के पास है, बाकियों के पास है, इसलिए वो चाहते हैं। बड़ा घर क्यों चाहिए? क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। शायद आपकी आयुर्वेद के साथ प्रकृति अलावा करती है आपको बड़ा घर। कई लोग ऐसे होते हैं कोजी स्पेसेस पसंद आते हैं छोटे, कुछ लोग ऐसे इनको विराट स्पेसेस पसंद आते हैं। आपके आयुर्वेद के साथ प्रकृति ना सूट करती है, पता नहीं। सो बहुत सारी ऐसी चीजें विशफुल होती है। लोगों को पहली चीज तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि चाहिए क्या है, और यही क्लियर नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज वहां है कि चाहिए क्या इज नॉट क्लियर। द मोमेंट यू हैव क्लैरिटी ऑन चाहिए क्या, यू आर हाफ वे देयर। आपको पता है क्या रास्ता लेके श्रीनगर जाओगे और क्या रास्ता लेके जयपुर जाओगे। डेस्टिनेशन ही नहीं पता लोगों को। कभी श्रीनगर जाने की बात करते, कभी जयपुर जाने की बात करते, फिर बोलते हैं हम तो बीच बीच में घूमते रह गए, पहुंचते कहीं भी नहीं। एक क्लैरिटी पे मिलेगी वो मेडिटेशन से, प्रैक्टिस करने से। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेडिटेशन से मिलता क्या है। सो फायदे क्या है मेडिटेशन? करेक्ट। इट गिव्स यू द बर्ड्स आई व्यू। आपको ऊपर से दिखाता है, एक मेज बनी हुई है नीचे, उस मेज में आप खड़े हो, आप उसमें से बाहर कहां से निकल सकते हो, क्या रास्ता छोटा है, क्या लंबा है, ये रास्ता तो डेड एंड पे ले जाएगा, वहां पे क्या ब्लॉक्स है उस रास्ते तक पहुंचने के। ये मेडिटेशन देता है। सो यू कैन चूज कि आपको करना क्या है, और फिर उस रास्ते पे आपको फॉलो कराता है कि ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, इससे पहुंच जा। दैट इज व्हाट मेडिटेशन डज। सो ध्यान करने से यू विल गेट द क्लैरिटी कि आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको नौकरी करनी है, आपको स्टार्टअप चलाना है, या आपको रिटायरमेंट के लिए आपका सफिशिएंट फंड है और आपको छुट्टी लेनी है जॉब से। लोगों को पता ही नहीं, ऐसी बात होनी चाहिए। इट विल गिव यू द क्लैरिटी टू गेट आउट ऑफ दैट मेज
दैट इज व्हाट मेडिटेशन डज. सो बर्ड्स आई व्यू से आप सब कुछ देख पाओगे, सब कुछ. पापा ये कर रहे हैं, मम्मी ये कर रही है, मैं ये कर रही हूँ, मेरे ऑफिस के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैं क्या करके इसमें से अपना रास्ता बना दूंगी. दैट इज व्हाट मेडिटेशन डज. सो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उस सब्जेक्ट में मेडिटेशन कर लो, and you'll get the answer. Correct. Whether it is personal or professional or Choose anything. Word is the menu card. कुछ मर्जी उठा लो. Anything under the sun or beyond the sun. जहाँ तक सूरज की किरणें नहीं जाती, उस गैलेक्सी में से भी कुछ उठा लो, मेरे को वो भी मिल सकता है. So, I think when I first started meditating was, आपने जो आसन बोला ना, my logic of using a certain space and thing was कि मैं अपने बेड पे अगर बैठ के करती थी मेडिटेशन तो मेरे को नींद आ जाती थी. तो अगर मैं अपने काउच पे भी करती थी तो भी मेरे को स्लीपी लगता था. जब मैं जमीन पे बैठ के करने लगी हूँ काउच के सिरहाने, तो आई एम नाउ अलर्ट. तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू थिंग व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेटिंग इज कि नींद आ जाती है या डिस्ट्रैक्ट होते हैं या द थॉट्स आर जस्ट नॉट स्टॉपिंग. तो even to achieve that level की clarity मिल गई, we are able to look at our own life with a bird's eye view. How much time does it take? I have a personal answer, but I'm asking you as an expert. So, अलग-अलग लोगों का प्रकृति अलग-अलग है. When you say प्रकृति मतलब what make up, what did I pick up? 9 तरह की होती है. Okay. But उसके बावजूद उसके ऊपर कैसे संस्कार हुए हैं? What all phases of life he has gone through. What all conditionings are there on his mind. Right. Those things counted. Correct. So today, you will take the decision basis on that conditioning and your prakriti. Correct. For example, I'm wearing a jacket. Right. अगर बॉडी में हीट ज्यादा होगी तो मैं गर्म जैकेट नहीं पहन सकता. So मेरी आज की ये चॉइस इस चीज पे बेस्ड है कि मुझे हल्के कपड़े पहनने की इच्छा. So मेरी चॉइस प्रकृति के हिसाब से बेस होकर निकल गया. दूसरा, मैंने फ्लोरोसेंट येलो कलर की या पिंकिश कलर की जैकेट नहीं पहनी क्योंकि मेरे ऊपर कंडीशनिंग है कुछ चीजों की कि ये कलर इस तरह से बेहतर लगना चाहिए तो हमें ये कलर यूज करना चाहिए. सो वी टेक डिसीजंस बेसिस ऑन आवर नेचर एंड द कंडीशनिंग्स दैट हैव हैपेंड ऑन आवर माइंड. Same goes with the frame that I've chosen. Same goes with anything that I choose. Anything that I choose. Be it my car, be it my office space, be it my people who I work with. It's all because of two things, Prakriti and the conditionings. Conditionings को हम लोग हटा सकते हैं with maturity. प्रकृति तो नेचुरली नहीं, तो हम उसके अराउंड प्ले कर सकते हैं. तो अब किसी की प्रकृति में चलायमान ज्यादा, I mean the fellow is very restless, let's say. He will take more number of sessions versus somebody who is okay sitting in one place for a long time. उसके शरीर में स्थूलता ऑलरेडी ज्यादा है, वो बैठ सकता है ज्यादा देर. जिसके शरीर में हलचल करने की आदत ज्यादा है वो थोड़े दिन ज्यादा लेगा. एक 5 दिन लेगा तो दूसरा 9 दिन लेगा. लेट इट बी, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा. दूसरी चीज, समय कितना होगा. जब आप बैठ गए ध्यान के उस प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए, तो कोई व्यक्ति 5 मिनट कर पाएगा, कोई 3 ही मिनट कर पाएगा, कोई 30 मिनट कर पाएगा. पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 30 मिनट करने के बाद ही रिजल्ट आएगा. जिसकी प्रकृति चलायमान है, जो ऑलरेडी हलचल करने वाला व्यक्ति है, वो तो टिक के बैठता ही नहीं. उसको आपने 3 मिनट बिठा दिया तो बोलेगा सर मजा आ गया, 3 मिनट में मजा आ गया. क्योंकि उसने कभी स्थिरता एक्सपीरियंस ही नहीं करी है. वो 3 मिनट में खुश है. वो जो व्यक्ति स्थूलता की तरफ ज्यादा है या जिसका शरीर सिडेंटरी साइड पे ज्यादा रहता, आप उसको आधा घंटा बैठा लो, आधा घंटे बाद अब मजा आया सर. उसको 3 मिनट में आएगा तो उसको 30 में आएगा. मेडिटेशन दोनों के लिए अलग ड्यूरेशन अलग अलग हो गई पर मजा दोनों को बराबर आ गया. और ये उनकी नेचर ने तय किया था कि तू तो आधा घंटा बैठ पाएगा, तू 3 मिनट बैठ गया तो भी हो जाएगा. सो आप जितनी देर बैठ पा रहे हो ये इममटीरियल है, रिजल्ट सेम आने वाला है. आपके पास जितना शरीर इजाजत दे रहा है, बॉडी के सिग्नल को सुनो, रिस्पॉन्ड करो. सो आई सेड के घर में तख्ती टाप दो इस चीज की.
लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स ऑफ योर बॉडी. हाँ. बॉडी में ना कोई प्रॉब्लम ही एंटर नहीं कर पाती. अभी तो हम ध्यान पे बात कर रहे हैं, पर हम नेक पेन, नी पेन, बैक पेन पे भी जब पेशेंट्स को यहाँ डील करते हैं तो भी उनको बात बताते हैं. लिसन एंड रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स ऑफ योर बॉडी. बॉडी आपको हर बार ठीक सिग्नल दे रही होती है, आप ओवरलुक करते हो. यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, नेक बोल रही थी ब्रेक लेने, आपने बोला नहीं डेडलाइन है पूरी करनी पड़ेगी. यू ओवरलुक द सिग्नल ऑफ योर नेक. तो नेक फिर कुछ महीने, हफ्ते, साल भर बाद परेशान करना शुरू करती है. पर अगर आप बॉडी के सिग्नल सुन लेते और रिस्पॉन्ड करते, प्रॉब्लम नहीं है. सो सेम कमिंग बैक, आप बैठोगे कितनी देर, लिसन टू योर बॉडी एंड रिस्पॉन्ड टू योर बॉडी. बॉडी कह रही है भाई मैं 5 मिनट बैठ सकती हूँ, ओके, स्टार्ट विद दैट. थोड़े दिन बाद भाई बॉडी बोलेगी मैं 7 मिनट बैठ सकती हूँ, वेरी गुड, गो अहेड. सेम बॉडी विल से आफ्टर अ फ्यू डेज, टुडे आई वाज a little uncomfortable in the night, so I would like to sit for only 4 minutes. Let it be. That is your body which is talking to you. Let it be. But stay consistent. Practice. बिना उसके तो वो मैकेनिक भी अच्छा मैकेनिक नहीं बन सकता, पायलट भी अच्छा पायलट नहीं बन सकता. प्रैक्टिस चाहिए. So, whether you sit for 3 minutes or you sit for 30 minutes or you sit for 3 hours or you sit for 3 days, it's all about practice, number one, and then listening and responding to the signals of your body. So, लोगों के लिए एक बात ये बहुत क्लियर हो जाए कि आप जितनी देर बैठ पा रहे हो ठीक है, आप जितनी देर बैठ पा रहे हो वो ठीक है. हमारा टारगेट है कि हम क्या रोक रहा है हम उसको पकड़ें. Let's say, why did you sit only for 3 minutes, let's say, or only for 30 minutes, and only for 3 days, 5 days के लिए बैठे भाई. What stopped you? What was the reason you left that sadhana, left that practice? हिप जॉइंट टाइट लग रहा था, अच्छा घुटने में टाइटनेस लग रही थी, तो हिप जॉइंट को फ्री कर लेते हैं तो 3 की जगह 5 हो जाएगा. कौन नंबर? अच्छा बॉडी झुक गई थी क्या, तो ठीक है हम सपोर्ट देते हैं क्या पीछे, उससे बेटर हो पाएगा. फाइंड द रीजन कि आप पर्टिकुलर नंबर के बियॉन्ड क्यों नहीं गए. वो नंबर चाहे 3 हो, चाहे 30 हो, चाहे 300, डजंट मैटर. उसको इंप्रूव करना है. सो योर कंपटीशन वर्ड बोलना चाहिए क्या, बोल देते हैं अभी के लिए, या टारगेट. योर कंपटीशन इज ओनली विद योरसेल्फ. मुझे से फर्क नहीं पड़ता है कृतिका कितनी देर बैठ सकती है, मैं कितनी देर कल बैठा था, मैं कितनी देर आज बैठ रहा हूँ. आई वुड रादर पुट इट दिस वे, मैं पिछले हफ्ते तक प्रैक्टिस कैसी कर रहा था और इस हफ्ते प्रैक्टिस कैसी कर रहा हूँ. पिछले हफ्ते में कुछ दिन ऊपर नीचे हुए थे, कुछ दिन ऊपर नीचे होंगे. इन टोटलिटी आई एम इम्प्रूव्ड फ्रॉम लास्ट वीक, from last month, from last year, from last decade. Are you evolving as a person? So that's it. So अब बॉडी रोक रही है तो आसनों का अभ्यास जरूरी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना जरूरी हो गया. और अगर नींद पूरी नहीं ली थी तो जिसकी वजह से बॉडी झुक रही थी, गिर रहे थे, रेस्ट ऐसा जरूरी हो गया. And I can mind, okay, so sometimes the thoughts itself which come up in this meditation are not very pleasant all the time. Right. They're not pleasant all the time. Conditioning. Conditioning. वो पीछे से बोल रहा होता है कुछ. Yes. Yes. So then what to do? Actually, I don't know the answer to that. आप बताओ. Work on resolving what shows up. वो भी एक टेक्निक है. एक आपको साइंस बताओ, साइंस ब्रेन कैसे फंक्शन करता है. हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज पे लगता है. यही इसका प्लस पॉइंट है और यही इस बात की चाबी भी. जैसे आप इस समय हम लोग जब बैठे, आप घर में कितने कपड़े धुल गए होंगे तो नहीं सोच रहे हो ना. Correct. आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, वो ड्राइवर ने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, आप नहीं सोच रहे हो. आप यहाँ पे हो, दिमाग एक ही जगह फिक्स्ड है. यही दिमाग का प्लस पॉइंट है. जब आप कोई भी विचार ले रहे हो आप उसी के साथ होते हो. नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव के साथ होते हो, पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव के साथ होते हो. तो कौन सा लेना हो तो आपकी चॉइस होती है.
लोगों को लगेगा नहीं हमारी चॉइस नहीं होती, हम तो चुप बैठे थे, ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ऐसा नहीं होता। बट एनीवेज हम उसी चीज को घुमा देते हैं, उसी बात को कि हम विचार को पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा देते हो। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। करेक्ट। मल्टीटास्किंग डजंट एग्जिस्ट। आप एक टास्क और दूसरे टास्क के बीच में फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में स्विच कर रहे होते हो, पर एक बार में एक ही काम कर रहे होते हो। ऐसे एक बार में एक ही काम कर रहे हो तो मोनोटास्किंग सीखो ना। मल्टीटास्किंग कोई स्किल नहीं है, मोनोटास्किंग स्किल है। तो वही चीज सिखाने का काम ध्यान कीजिए। आप वही करने से कि आपको नेगेटिव विचार अगर आ रहे हैं तो हम कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसी चाबी घुमा दे, कुछ ऐसा डायरेक्शन ऑफ थॉट्स को ऐसा फ्लो करा दे कि वो साउथ में जाके नॉर्थ चले। वो की है, वही उसी चीज की प्रैक्टिस की जाती है। और तो जैसे ध्यान इसकी प्रक्रिया ना हर थोड़े दिनों बदलनी चाहिए। हाँ करेक्ट। जब आप एक ही टेक्निक को फॉलो करते रहते हो, दिमाग बहुत होशियार है, उसको पता है अगला सेंटेंस क्या आने वाला है, इसको पता है आगे क्या होने वाला है, वो उतनी देर में कहीं घूम के वापस आ जाएगा। हमें पता है कि ऐसा करता है, तो साइंस ही है, गिव हिम अ न्यू थॉट, गिव योर ब्रेन अ न्यू थॉट। माइंड को ऐसा डायरेक्शन दे दो कि हर बार उसको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, वो आप ही के हाथ में से चल रहा है। सो गाइडेड मेडिटेशन वर्क बेटर इन सच केसेस। करेक्ट। आप उनको खाली बैठा दोगे तो दिमाग तो बहुत कुछ करके आ जाएगा उतनी देर में। करेक्ट। सो गाइडेड। तो आई शेयर एक्चुअली जो आपने बोला है मेरे को वैलिडेटेड लग रहा है चीज़ें मैं करती हूँ। कई बार मैं अपनी मेडिटेशन 2-3 हफ्ते के अंदर चेंज कर देती हूँ। तब तक दैट इज अ टाइम फ्रेम दैट आई सीन कि मेरे को याद होने लग जाता है कि अब वो बोलेंगे कि हाँ ध्यान दो, हाँ ध्यान दो, तो मेरे को समझ आ जाता है कि अब 2-3 वीक्स में आई कैन शिफ्ट। So why not to have a new meditation every day? Yeah, why not? A new technique every day. A new technique. 2 हफ्ते में तो याद हो ही गएगा। फिर जब घूम के 5वीं 6ठी के बाद इस पे आओगे फिर याद होगी। क्या वो याद ही मत। So we have a playlist of 18 meditations, हम लोग वैसा उसको यूज करते हैं पेशेंट्स के केस में याद करना। But you should and you must change the technique of meditation every day, every day, every day. कुछ अच्छी लगने लगेगी उनमें से, उनको आप ज्यादा करना चाहोगे, that is okay. आप 2 हफ्ते में हो सकता है 14 मेडिटेशन ना करो अलग अलग, शायद 10 करो, that's all right. चलता, जिसमें आप ध्यानस्थ हो पा रहे हो, जिसमें आप स्थिर हो पा रहे हो, वो that works. आज आपने दूसरी चीज बोली कि माइंड को न्यू थॉट दे दो, तो जब मेरे को कभी नेगेटिव थॉट आता है आई डोंट रेजिस्ट इट, आई लेट इट बी. I also acknowledge, okay, now this is what I'm feeling. This is the thought that has come. But this is not serving me well. What will serve me well is if I think this. And how would I be then? And then run. So you channelize it from negative to positive. Okay, how will I fix this? How will I do this? Right, correct. So दिमाग एक ही बार एक ही चीज पे लगा रहे हो. वहां से आया था, पकड़ के इस रास्ते ले गए. Correct. So that works. That works. Yes. Okay, great. Take it. So this is new. This I will take away that I will practice one new meditation every day. Yes. And जो ये thoughts आ रहे हैं ना, अगर एक thought बार बार आता है, किसी ने ऐसा बुरा कहा था, मेरे को ऐसा physical hurt हुआ था, या emotional shock लगा था, उसकी image आपके दिमाग में कैसी है, सोचो वो कैसा है. Let's say मैं आप सब लोग को एक exercise करने के लिए बोल रहा हूँ, अभी मेरे साथ साथ कर लीजिए. Apple मैं बोल रहा हूँ आपको, तो आप आई एम सेइंग अबाउट एप्पल, तो आपको क्या समझ में आ रहा है अपने मन में रखो, भी जवाब नहीं देना. आई एम आस्किंग यू कि आप देखो एक हवाई जहाज, एरोप्लेन, क्या आया आपके मन में, वो सोच लो. फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखो एक मोबाइल फोन, सोचो एक मोबाइल फोन के बारे में, देखो एक मोबाइल फोन को. ऑलराइट. सो अब मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, आप में से किसी ने भी एरोप्लेन को AEROPLANE लिखा हुआ नहीं देखा? आपने एक एरोप्लेन की इमेज देखी? नहीं. आपने एक मोबाइल की इमेज देखी, MOBILE नहीं देखा? करेक्ट. सो ये सारी कंडीशनिंग आपके दिमाग में इमेजेस के तौर पे स्टोर्ड है. वो इमोशनल हर्ट
इमेज के तौर पे है, वो फिजिकल हर्ट, फिजिकल तो जा चुका, घाव भर गया, इट इज स्टिल देयर इन योर बॉडी, इन योर माइंड, इन एन इमेज फॉर्म, एंड अ वेरी विविड इमेज, फोटो के तौर पे छपा हुआ है दिमाग में, एंड एवरी टाइम यू रिविजिट दैट फोटो यू गेट गूज़बम्प्स, यू गेट दैट फीलिंग इन योर बॉडी। इमेज ही चेंज कर, इमेज ही चेंज कर, फिर वो थॉट कैसा आएगा? आएगा ही नहीं, या तो गुफो हो जाएगा आते आते, वो फीलिंग के साथ तो नहीं आ सकता जिस फीलिंग में आया था। सेम चीज तो रिसर्फेस नहीं हो नहीं सकता, नहीं सब, बस इमेज चेंज कर दिया हमने घुस के, उसकी फाइल ही चेंज कर दी। वैसे ही एग्जाम्पल दे सकते हो, कर लेते हैं प्रैक्टिस, हाथ का प्रैक्टिकल कर लेते। मतलब ऐसे ही, मतलब आई थिंक अगर किसी को बचपन में एग्जाम या स्कूल के नाम से यही फेयरफुल फीलिंग आ जाए कि मतलब मार्क्स मिले और उस पे था 10 आउट ऑफ 50 फॉर एग्जाम्पल, राइट? अगर इमेज ही आ रही है दिमाग में, तो स्कोर शब्द से सुनते ही अगर इमेज ये आ रही है, तो आप बोल रहे हो बेसिकली कि इमेज चेंज कर दो, कैंटीन या उसकी 1 को 40 कर दो, 140 उसको 40 कर दो, और टीचर ने डांट नहीं लगाई, टीचर ने सामने बुलाया और तालियां बजाई सारी क्लास से। आपको पता है तालियों की इमेज कैसी दिखती है, यू नो दिस, सो अब इसके लिए आपको अपनी मेमोरी यूज करनी पड़ेगी। क्लास में जब तालियां बजती है तो कैसी दिखती है, क्लास में टीचर आगे बुलाते हैं तो क्या बोलती है, आप वहां खड़े हो, टीचर आपकी तारीफ कर रही है और सारे बच्चे तालियां बजा रही है, ये इमेज अपने दिमाग में छाप लो, 10/50 के बजाय 40 आउट ऑफ 50 के। प्रैक्टिस है, 4 बार करके 5 बार आपको तालियां बजती सुनाई देंगी, उसके बाद that image itself has changed. So because we have changed the file, so next time when you will have this thought again, 10 on 50, you will also have another thought, 40 on 50. And after a few days, you will only have one thought. यही था यार, यही थी हकीकत, हकीकत ही बन। आपके साथ सारा दिन होता नहीं मोबाइल पे, आपको जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, आपको नहीं लगता कि आपको प्रोग्राम करा जा रहा है if particular thought के साथ you are being alive. Yes. So they are doing it already, and it is happening all around. Absolutely. You can see it. You can see it in yourself. 5 years, 10 years before, and what is the status now? Correct. So it is all about the images that are being changed. पुरानी स्टोरी के ऊपर नई स्टोरी डाल दी, पुरानी स्टोरी के ऊपर नई स्टोरी डाल दी, पुरानी इमेजेस पे न्यू मीनिंग अटैच कर दो। अब इस पे ना एक काउंटर क्वेश्चन आएगा, लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू नो दिस, सर वो थॉट को अगर हमने करप्ट कर दिया, अगर हमने उसको चेंज कर दिया, तो हमारे साथ वो प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है, बिकॉज ऑफ दैट थॉट नाउ वी एक्ट इन अ सर्टेन वे। मैं एग्जांपल ऐसा देता हूँ जो बिल्कुल ही ब्रॉड है, इस सिस्टम से बाहर है, ताकि लोग कहीं कोई हर्ट नहीं उस बात को। मैं इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान अटैक इंडिया, अब हम इस मेमोरी को डिलीट कर दें, नहीं दोबारा कर देंगे, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू फाइट देम बैक। करेक्ट। सो उस थॉट का मेमोरी एक अलग तरीके से स्टोर की जा सकती है कि हमें एक्शन लेना है। जो भी आपके साथ स्कूल में किसी टीचर ने आपकी पिटाई की, या आपको आपके स्पाउस ने गलत तरीके से कुछ बोला था, कुछ भी आपके जो मन में थॉट है, आपने उस थॉट को तो चेंज कर दिया, क्योंकि अब आपको हर्ट नहीं करता, अब आप मेडिटेशन में यू गो डीपर। बट इफ दैट हैपेंस अगेन देन सो यू हैव टू टेक सम गार्ड्स, सो दिस शुड नॉट हैपन अगेन। तो उसके लिए एक्शंस वो डालता है कुछ चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट पीस विद दैट पर्टिकुलर एपिसोड दैट हैपेंड विद मी, जो भी स्कूल में हुआ था, मैं उसका तो ओके हूँ। बट नाउ आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं दिन में 2 घंटा बैठ के स्टडी करता हूँ, क्योंकि मेरे 40 और 50 आए। तो अब मैं 2 घंटा स्टडी करता हूँ, इसीलिए तो वो आए थे, पहले तो पढ़ता ही नहीं था। सो उसको किसी ऐसी चीज से कनेक्ट करना ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो। अगर सिर्फ फैंसी और विजुअल थिंकिंग ही रहेगा तो दोबारा। आई थिंक जो आप मेंटल इमेज की चेंज करने की बात कर रहे हो, इट्स ऑल्सो प्रोबेबली यूजफुल टू अंडरस्टैंड कि द पर्सन यू आर बीइंग इन दैट इमेज, इफ यू गॉट 10 आउट ऑफ 50, इट्स नॉट एक्सीडेंट ना कि आपका वो रिजल्ट आया, मतलब वो रिजल्ट इसलिए आया कि आपने भी कुछ, there is a certain way of being that you brought into academics.
और मैं आपके स्पाउस वाला एग्जाम्पल भी लूंगी, ठीक है, जब आपने स्पाउस वाला एग्जाम्पल लिया, आपने ये तो मेंटल इमेज चेंज कर ली कि ओके आपका 40 और 50 आया, बट यू कैन इवन चेंज दैट मेंटल इमेज ऑफ द पर्सन यू वर इन दैट मेमोरी एज वेल. That's when you have access to new actions. Even with spouse, for example, जो आपने बोला कि spouse ने बुरा गलत बोल दिया, so a lot of people actually have that mental image कि मैंने सुन लिया बुरा. You can have that image that, you know, I maybe did not react, but I responded that it doesn't work. ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, or you stood up for yourself, and that image can also get memorized, and you can pick up a whole new way of being. Correct. So मेन्यू कार्ड पूरा खुलाओ, कुछ मर्जी कैसा मर्जी, जैसे म्यूजिक डाल दो पीछे से, तो वो पीछे से ना जैज म्यूजिक चल रहा था. और उस समय मेरा स्कूल का रिजल्ट अनाउंस हो रहा भाई, ऐड एनीथिंग, आप उसमें स्पाउस के साथ जो एपिसोड है सब कुछ ऐड कर दो पीछे से. बोलो मेरी सासू माँ मेरे को तालियां बजा रही थी, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा काम करते, मेरा बेटा ही खराब. यू ऐड एनीथिंग टू इट, और मेन्यू कार्ड है ऊपर, वो इमेज वो होगी जो आप बिलीव करते हो, दैट इज अपने आप बन जाएगी. कुछ बिलीव करते हो, कुछ पार्शियली बिलीव करते हो, थोड़े दिन वो सोच के एंड दैट नेगेटिव थॉट विल नॉट कम अगेन. और आगे बोले करप्ट है, अगली बात पे बात, इट विल बी लाइक दैट. सो इज देयर एनीवन हु शुड नॉट मेडिटेट? सो मेडिटेशन ना अपनी एक्टिविटी में, अपने काम में है, लेकिन जो टेक्निक्स फॉलो करने की हम बात कर रहे हैं, उन टेक्निक्स को जनरली लोग ये मानते हैं कि स्थिरता से, शांति से बैठ के किया जाता है, आइसोलेशन में किया जाता है, बंद कमरे में, पब्लिक ना हो वहां किया जाता है. अब कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी आइसोलेटेड है, जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, जो ऑलरेडी रोता है अकेले बैठ के, जो ऑलरेडी खुद को लेफ्ट आउट फील कर रहा है, अब उसको रोक दो, ध्यान कर. सो उसके लिए टेक्निक चेंज हो जाएगी. उसके लिए वो शांत, वो बांसुरी बजती हुई या छोटा सा पीछे पानी का म्यूजिक चल रहा है, विल नॉट वर्क फॉर हिम. करेक्ट. उसको कुछ और चीज की नीड है. उसको शांत नहीं होना है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी एनर्जी लो हो गई है. हमें उसको स्टार्ट करना है. तो ऐसे में शुरुआत के कुछ सेशन में हम उसको बोले कि आप ना एक्टिव मेडिटेशन करो, डांस मेडिटेशन, जैसे ओशो स्टाइल में होते हैं, डांस करते हुए मेडिटेशन, वो स्टाइल उसके लिए. उसकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी, वो आइसोलेटेड फील नहीं करेगा, वो उसका जो ठंडा हो रहा था, मतलब ही वाज गेटिंग लो हो रहा था, वो वापस से अपलिफ्ट हो जाएगा. करेक्ट. सो उस केस में डांस मेडिटेशन इज अ गुड वे ऑफ मेडिटेशन. अब इसका मतलब नहीं कि ओशो का सेंटर ढूंढना शुरू कर दो और वहीं चले जाओ. गो एंजॉय डांस क्लास. बहुत सारे केसेस में लाउड म्यूजिक हेल्प्स. करेक्ट. आप डिप्रेस्ड व्यक्ति को लो फील कर रहा है, आप उसको बिल्कुल हल्की सी कोई म्यूजिक सुना के बोलो कोने में बैठ जाए एक तरफ जाके, उसको बोलो हेडफोन लगा, कंफर्टेबली, जितना लाउड म्यूजिक बीट्स वाला जिसमें जोर से बजता है, ड्रम्स धम धम धम, वो दिमाग को ना भटकने नहीं देते, वो वापस से पकड़ के अपनी जगह लेके आते. वो जैसे ही डिप करने लगता है वैसे ही ड्रम बजता है जोर से, और वो वापस से ध्यान आ जाता है कि नेगेटिव चीज की नहीं सोचते कि ये म्यूजिक ही ध्यान खींचे जा रहा है लगातार, बार बार. तो वो उस नेगेटिव थॉट से बाहर आ जाता है, और अल्टीमेटली वो लाउड म्यूजिक उसको हेल्प करता है. लाउड का मतलब मैं बहुत ऊंचे म्यूजिक से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत ड्रम्स की बात कर रहा हूँ, जो आपको जगाए. सुप्तावस्था में जा रहा है दिमाग, जागे हो लेकिन नींद में ही चल रहे हो. नींद में ही चल रहा का मतलब नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग, ऐसे ही घूम रहे हो घर में बिना कोई उद्देश्य, बिना कोई चीज. उस व्यक्ति को जगाने की बात कर रहा हूँ. जागा ही हुआ है, जागे हुए के जगाने की बात. उसमें बीट्स काम आती है, लाउड म्यूजिक काम आता है, ऊंचा नहीं पर तेजी से चलने वाला, फास्ट एंड बीट्स, टेम्पो. यस दैट्स थैंक यू. सो वो चीज उसमें हेल्प करती है, और वैसा म्यूजिक उनके लिए है. तो ध्यान की टेक्निक चेंज हो जाएगी अलग अलग लोगों के लिए. जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऐसे चीज पे तो हम ध्यान ही नहीं कर पाते, वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उनकी शायद नींद अलग है, उनकी टेक्निक अलग चाहिए थी, वो टेक्निक नहीं मिल रही, उनको इसलिए ध्यान नहीं कर पा रहे. तो हम क्या इसीलिए कि अपने लिए अच्छी टेक्निक फिगर आउट कर सकें, इज इट अ गुड आइडिया टू वर्क विद समबडी वन ऑन वन? एब्सोल्युटली. एक बहुत अच्छी कोटेशन है जिसमें टॉम पेयर ने शायद बात बोली है. He said, best leaders
choose best advisors. Best leaders choose best advisors because they govern them. Advisors govern them. So आपका एडवाइजर कौन है? Best leaders are choosing best advisors. आपको एडवाइस चाहिए हेल्थ के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, बेस्ट को चुनिए. बेस्ट आपको लगता है भीड़ में मिलेगा, 1 to many के फॉर्मेट में मिलेगा? मिल ही नहीं सकता. एक व्यक्ति 50 लोगों को एड्रेस कर रहा है, सबको बता रहा है कि ये वाली मेडिटेशन टेक्निक 50 लोग फॉलो कर लो. चूज द बेस्ट. One-on-one is the best. With the best. Correct. That will give you the best results. Like in my own lowest time, my coach actually sat me down, मेरे को मेडिटेशन जो कराया वही रिकॉर्ड पे लगाया और मुझे पर्सनलाइज मेडिटेशन दी कि मैं वो सुन सकूं. और फिर 1-2 बार ऐसे उन्होंने, अब हर बार ऐसे नहीं किया, तो एक बार मुझे ये बोला कि अब ये वाले चीज़ें आप खुद अपने आप को अपने वर्जन में बोल के, एंड उन्होंने भी वही चीज़ सेम जो आपने टेम्पो वाली बात बोली कि रिकॉर्ड योर सेल्फ व्हाइल यू आर स्पीकिंग, बट बैकग्राउंड म्यूजिक यूट्यूब से कोई अच्छा अप बीट जो आपकी स्पिरिट अप करे उसको लगा के अपने आप को ही वापस लिसन टू इट इन योर वॉइस, योर ब्रेन विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू इट बेटर. सो नाइस, ठीक है, मेक सेंस. एंड अब नाउ आस्किंग यू वन मोर थिंग, शुड पेरेंट्स like get their kids to meditate, and how young can they start? The sooner the better. इसका मतलब ये नहीं है कि 2-3 साल वाले को बिठा दो. The moment you realize के अब वो बैठने लायक है, जनरली हम उसको 14 साल की उम्र मानते हैं योग में. 14 साल के बाद आप तैयार हैं उस चीज के लिए, पर 14 से पहले का समय भी मुझे ऐसा लगता है हमें इस्तेमाल करना चाहिए. हम उसको इस्तेमाल किस तरीके से करें? हम उसको ऐसी टेक्निक सिखाएं कि बेटे आप जब उठते हो सुबह तो आधी नींद में तो वही बेड पे वही पीठ टिका के बैठ जाओ. 15 बार, 21 बार, 51 बार ओम का जाप कर लो वही. सो व्हाट ही इज डूइंग इज धारणा. वो अपने माइंड को एक दिशा में लगा रहा है कि अब मुझे 15 बार का जाप कर. आपने उसको 14 साल बाद जो एडवांस चीजें करनी है उसके लिए भी तैयार कर दिया. प्लस वो अपने बाकी लोगों को ये बताया कि मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, तो वो खुद को अच्छा महसूस करता है. प्लस अब वो मेडिटेट कर रहा है, ये फैक्ट है, वो चाहे 15 ओम के लिए कर रहा हो, बस ध्यान लगाना तो आ गया. आप उसको भी बोल सकते हो कि अच्छा सुबह उठते हो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लो. ध्यान लगाएगा तभी तो कर पाएगा, बिना उसको तो होगा ही नहीं. या फिर आप उसको सुबह उठ के बोल सकते हो कि अच्छा जब आप उठते हो तो सूर्य को जल चढ़ाने के लिए आप 2 मिनट के लिए एक पाँव पे खड़े हो जाओ और वृक्षासन कर लो. वो भी ध्यान हो गया, 1.5 मिनट का ध्यान हो गया. आप किसी भी एक्टिविटी में इंजेक्ट कर दो तो वो ध्यान की शुरुआत करा दी आपने उसको. शॉर्ट ड्यूरेशन ध्यान की शुरुआत करा दी. अब आप चाहते हो कि जबरदस्ती पकड़ के बैठाना है, तो बच्चा है, उसकी एनर्जी चंचल है, वही बचपना है. आप उसकी उस एनर्जी को ही चाहते हो कि चेंज हो जाए. क्यों? वो बचपना है उसका उछलना, कूदना, चीजें फेंकना, दीवार के ऊपर पेन चलाना, यही बचपना है उसका. आप चाहते हो कि You should write between the lines. आपका कलम बोले से बाहर नहीं जाना चाहिए. या टीचिंग समाज कैसे चलता, आपको ऐसा चलना चाहिए. ज्यादा खुश कौन है, आप या बच्चे? फिर उनसे आपको सीखना चाहिए. आप उनको सिखाने पे लगे हो. उनको कुछ उनके पसंद की चीज में लगा के ध्यान कराना, ऐसे कि वो खुशी खुशी उस चीज को कर जाए, इज द राइट वे. खाना खिला रहे हो, चलो उसको उसकी पसंद की मैगी खिला रहे हो. आपको पता है आप हफ्ते में एक चीट डे देते हो उसको, और दिन में एक बार कुछ बिस्किट देते हो उसको. ठीक है बेटे, अब इस मैगी का नूडल को आप धीरे 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 अंदर जाता हो फील करोगे. यू हैव टू फिनिश दिस मैगी. ओनली लुकिंग एट द मैगी बोल, यू विल नॉट वॉच टीवी. आपकी चॉइस का मैगी मिला, मैगी को देखो, इसमें कितने मटर के दाने देख लो.
आप इसके टेक्सचर को देखो, आप इसके कलर को देखो, आप इसको जब खा रहे हो तो इसको अपने टंग और पैलेट के बीच फील करो और पहचान दो, ठीक है? सो यू डू इट फॉर फर्स्ट 3 स्पून्स एंड देन द बोन इज योर्स. इतना होगा मैं, क्योंकि मैगी उसकी चॉइस किसको मिली हुई है. आपने उसको ध्यान लगाना सिखा दिया, सुबह आपने उसको वृक्षासन करा दिया, फिर आपने उसको 5-15 बार ओंकार का जाप करा दिया, शाम को आपने उसको मैगी दे दी, 3 स्पून तो ऐसे खा लो, बाकी तेरी चॉइस है. रात को सोने से पहले बेटे मुझे बताओ आज के दिन में क्या आपने अच्छी चीजें करी थी, 5 चीजें वो बताओ. उसको ध्यान लगा के सोचना पड़ता है उसके बारे में. Getting them present is important. आपने उसको फोकस करना सिखा दिया. बेड पे लेटा हुआ बच्चा आपको 5 चीजें बता रहा है दिन में क्या अच्छी करी थी, फोकस करना सिखा दिया, एनालिसिस सिखा दिया. सोते हुए आप उसको बोलो कि भगवान जी को दोबारा 15 बार उनका जाप करके थैंक यू बोल के आज के दिन के लिए. Start with meditation. Throughout the day he's meditating in different parts. रात को सोते मेडिटेशन टोटल आपसे ज्यादा कर लिया उसने. सुबह 15 बार होंगे, मान लीजिए उसको 3 मिनट लग गए, वृक्षासन करा उसने, उसमें 1-1.5 मिनट लग गया, उसने मैगी खाते में लगा दिया, हफ्ते में 1 बार ही लगाया, रात को सोते हुए लगा दिया. 10 मिनट का या 7 मिनट का उसका हो गया. आप टोटल 7 मिनट में नहीं करते पे, उसका जरूर हो जाएगा. सो हमें सिस्टम में डाल देना है, उसका बचपना मेंटेन रहने देना है. बिल्कुल भी ज्यादा टेप नहीं करना होता बच्चों को. Gardening also is. Gardening also is. Very much. I know. And yeah, that's a good type of meditation. Absolutely. So can meditation help someone with coping up with grief or loss? Yes, absolutely. Very much helpful. Very much helpful. टेक्निक क्या होगी उसके लिए वो भी तय करना. But yes, it is very helpful. And technique क्या हो सकती है इसके लिए? ग्रीफ कैसा है, सॉरो कैसा है, उसका ट्रिगर कहाँ है, उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करके एक तो उसकी इमेज चेंज कर देंगे. फिर जो दूसरी इमेज उसके पास आई है उसको एम्प्लीफाई कर देंगे. सो द फेलो विल गेट आउट ऑफ द ग्रीफ एंड विल गेट स्टेबल इन हैप्पीनेस. पॉसिबल. Is there a good time to meditate? Yes, there are preferred times to meditate. Okay. और वो समय सबसे अच्छा होता है जब आप उठते हैं. Whenever you are waking up, that is the right time. When you are going to sleep is the right time. आपके ब्रेन की ऑलरेडी हलचल कम हुई हुई होती है. आपको उस हलचल को कम करने का जो समय लगता है ड्यूरिंग द डे, अगर आप दोपहर को 2 बजे बैठ जाए तो थोड़ा हलचल कम करने का समय लगेगा, बॉडी को स्टेबलाइज करने का समय लगेगा. वो समय नहीं लगता. ऑलरेडी आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, आप वहीं से सीधे ध्यान शुरू करते हैं. सो सुबह जब आप उठ रहे हैं, आधी नींद में है, वो सबसे अच्छा समय है मेडिटेट करने का. आप उठोगे, नहाओगे, कपड़े चेंज करोगे, सब कुछ करोगे, पूजा पाठ करोगे, फिर ध्यान में बैठोगे, यू आर ऑलरेडी अप. बॉडी इज ऑलरेडी अलर्ट. ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि उस समय करो जब हलचल आसपास कम, सुबह वाला समय ज्यादा अच्छा होगा. क्योंकि अगर आपको सब चीजें अपना नित्य कर्म करने के बाद इफ यू वांट टू मेडिटेट, डू इट अर्ली मॉर्निंग. और संध्या का समय अच्छा माना जाता है उसके लिए. बट सबसे easy इज उठ रहे हो बेड से, अभी आधी नींद में हो, वहीं पीठ टिकाओ, या फिर जमीन पे बैठ जाओ, बेड के साथ पीठ टिकाओ, या वहीं से आधी नींद में उठ के अपने एक स्पॉट पे चले जाओ जहां पे आपको लगता है वहां बस जाओ बैठ. दैट्स इट. स्टार्ट. कट. स्टार्ट देयर. आपको 2 स्टेप नीचे नहीं आना पड़ेगा, 4 लेवल में से 2 नीचे आने पड़ते हैं. सीधा तीसरे स्टार्ट करोगे और ज्यादा देर कर पाओगे, राइट, ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे. सो सुबह इज बेस्ट. सेकेंड बेस्ट इज जब आप सोने जा रहे हो, तब पे लाइट्स ऑफ हो गई है, सोने का समय है, आप नींद की तरफ जाने वाले हो, वो सेकेंड बेस्ट है. एंड डेफिनेटली ये एक सेट है. दूसरा सेट ये कि नहीं, मुझे तो सुबह उठ के बिल्कुल नहा धो के और सब बिल्कुल फ्रेश होके फिर ही करना होता है, क्योंकि बिना उसके आई जस्ट फील लाइक डूइंग इट दैट वे. ओके, फिर हम बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा, आप सुबह वाले समय पे करेंगे, या संध्या का समय अच्छा, जब धूप खत्म हो रही है, शाम शुरू हो रही है, वैसा सा समय अच्छा. तो ये सब अच्छे माने जाते हैं. आप
फिर भी अगर एक और इसमें पूछना चाहो तो मैं बोलूँगा ऑफिस में खाना खाने के बाद बिन कुर्सी में बैठ के, ऑफिस की कुर्सी में बैठ के गाइडेड मेडिटेशन करो, वहीं पे कान में लगाओ लीड, गाइडेड मेडिटेशन वहीं बैठ के शांति से 5 मिनट के लिए करो खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद बॉडी में बहुत सारा न्यूट्रिशन सप्लाई होता है, ब्रेन सोने के लिए जा रहा होता है, वही कर दो। वो समय पे भी आपको बहुत पॉजिटिव और क्विक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और मेडिटेशन लंबा करने के चक्कर में ना लगे, जितना हो रहा उतना करिए। अब मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, मेरा अपना। तो मैं ये करती हूँ, सुबह उठते ही आधी नींद में आई ट्राई टू फाइंड अ स्पॉट एंड अगेंस्ट अ काउच आई सिट ऑन द ग्राउंड एंड आई मेडिटेट, बट मेरे को कभी कभी नींद आ जाती है एंड आई हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज मैं अपनी गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ। और जब मैं उठी तो इज माई बॉडी आस्किंग मी टू रेस्ट एंड ये ना धार पे चलने वाली बात होती है। इसमें आसनों का अभ्यास काम आता है, खास करके शवासन का अभ्यास, योग निद्रा का अभ्यास बहुत काम आता है इसमें। ओके, उससे शरीर अभ्यस्त हो जाता है कि नींद में नहीं गिरेंगे, चलते रहेंगे धार पे, नींद में नहीं गिरेंगे, धार पे चलते रहेंगे। शवासन में भी नींद आने की पॉसिबिलिटी है। आसनस्थ जब आप हो, किसी भी आसन में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ध्यानस्थ हो, वो इतना रिलैक्सिंग हो सकता है आसन कि आपको नींद आ जाए और आपको जाके रहना होगा। करेक्ट। तो आसनों के अभ्यास से ये इस प्रैक्टिस में दृढ़ता आती है, पहली चीज। दूसरा, अगर आप करते हुए सो भी गए, बहुत लोग ना खुद को बुरा बोलने लगते हैं, क्रश करते हैं, नहीं यार मैं तो कर ही नहीं पाता, देख गिव अप। नहीं, ठीक है, 5 मिनट बैठे थे, 3 मिनट हो गया, 3 मिनट तो हो गया, अरे 3 तो 0 से 3 तो अच्छा है, नॉट बैड। और जब नींद खुले तो दोबारा ध्यान लगा दो, क्रश नहीं करो, तो बोलेंगे ठीक है, थोड़ी देर चलेगी, दोबारा लगा दिया, इमेज चेंज कर दो, हाँ इमेज दे देते, फिर दोबारा नींद आएगी, फिर जैसे ही जाग खुले दोबारा से फिर लगा दो ध्यान। इन टोटलिटी 10-15 मिनट का होता रहेगा बीच में से, ओके वेरी गुड, चलेगा। सो यू आर स्टिल ऑन द ट्रैक। एक और बड़ी अच्छी सेइंग है ना, इफ आई एम नॉट रनिंग आई विल जॉग, इफ आई एम नॉट जॉगिंग आई विल क्रॉल, बट स्टिल आई विल कीप मूविंग टुवर्ड्स माय गोल। कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक छोटी सी स्टोरी सुनो प्लीज। इंटरेस्टिंग है। एक तीरंदाज एक गांव में गया और अपनी आर्चरी के गुण दिखा रहा था, इस saying कि देखो, सो he shot the arrow and it was directly bullseye. Everybody clapped. There was one guy sitting at the back. वो बोला it's just a matter of practice. सारा गांव ताली बजा रहा है और ये तेल बेचने वाला, ये मुझे जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस, तू करके देखा, मैं नहीं करूंगा, तू कर। उसने फिर एरो चलाया, पिछले तीर के बीच में से गया और उस तीर को चीर दिया उसने। एंड अगेन बोल रहा, पब्लिक तो खड़े होकर तालियां बजा रही है, तो गजब का तीरंदाज है। दिस गाय स्टिल सेज ना, अभी वो आर्चरी वाला बंदा इसके पास जाता और इसको बोलता है, कैन यू डू दिस? नो आई कैन डू दिस। वो इफेक्ट मेरा मजाक उड़ा रहा, नहीं मैं तेरा मजाक उड़ा रहा, आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट अ प्रैक्टिस। बोले तू ये कर नहीं सकता। बोले एक मिनट मैं कुछ और कर सकता हूँ। बोले मैं तेल बेचता हूँ। एक छोटी सी बोतल ली, तेल का कप लिया और पतली सी धार से उसने उस बोतल के अंदर तेल भर दिया, एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। बोले नहीं तू ये कर सकता है? नहीं मैं तो नहीं कर सकता। बोले बिकॉज आई प्रैक्टिस pouring oil every day, morning, afternoon, evening. I'm expert on doing this. Because you do that every day, you practice that every day, so you're good at that. तुम ये नहीं कर सकते। It's just a matter of practice. So it is about practice, practice and practice. Thank you. I think that's what I'm taking away. That meditation is also purely about practice. Thank you so much. Thank you so much for your time, and it was wonderful having you and learning so much about meditation. I'm personally taking away a lot, so thank you very much. Thank you. Well, I think this conversation was very insightful for me even when I shot it.
I was really worked up going in, and the distinction between workload and stress was very, very insightful and turned my perspective around in a minute. If you like this conversation, if you found it valuable, I'm sure you would also like the other 2 conversations that we've done similar to this, and you will find a link in the description box below. See you in another episode, and thanks for watching.